پچھلے باب میں ہم نے کائنات کی نوعیت، وسعت، آسمانوں اور ستاروں کا ذکر کیا ہے۔ ماہر فلکیات کے مطابق کائنات میں تمام اجرام فلکی اپنے سے بڑے اجسام کے گرد گردش کر رہے ہیں، جیسے ہمارے نظام شمسی میں 8 سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ منظور ڈسکوری چینل میں تخلیق کائنات کی پریکٹیکل ثبوتوں کے ساتھ میں ہوں منظور حسین۔ صدیوں سے انسان نظام شمسی پر اندھی تقلید کرتا آ رہا ہے۔ آج ہم سورج اور زمین کا موازنہ کریں گے کہ کس کا وجود بڑا ہے۔ دوستو، ماہر فلکیات کے مطابق سورج زمین سے 110 گنا بڑا ہے اور زمین سے سورج کا فاصلہ 14 کروڑ 90 لاکھ کلومیٹر ہے۔ سورج کا قطر 8,65,000 میل ہے اور ہمارے زمین کا قطر 7,928 میل ہے۔ سورج کی کمیت زمین سے 33,000 گنا زیادہ ہے۔ اب ہم اپنے نظام شمسی پر مشاہدات، تجربات اور قرآن مجید پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے چند ایک: سورہ انفطار آیت نمبر 3، جب سمندروں میں پھوٹ ڈالی جائے گی۔ سورہ التکویر آیت نمبر 6، جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا۔ قیامت کے روز سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی اور سورج کو اوندا کر کے زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کو بے نور کر کے سمندروں میں پھینک دیا جائے گا، پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ اس گھبراہٹ اور نفس و نفسی کے عالم میں جنات کہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ سمندروں کے کنارے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سمندروں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج زمین سے کئی گنا چھوٹا ہے۔ سورج کو زمین یا سمندر میں پھینکنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج چھوٹا ہے۔ سورج اور زمین کے ماڈل پر مشق کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ زمین کا وجود بڑا ہے یا سورج۔ ماہر ارضیات نے زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس خط کو زیرو ارض بلد کہتے ہیں۔ زیرو ارض بلد کے شمال میں 90 ارض بلد اور زیرو ارض بلد کے جنوب میں بھی 90 ارض بلد ہے۔ زیرو ارض بلد کے شمال میں 23 ارض بلد اور 23 ارض بلد جنوب میں 2 خط کھینچے ہیں۔ سورج سارا سال ان 2 خطوں کے درمیان گھومتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے خط ہیں، خط طول بلد، جو شمالاً جنوباً کھینچے جاتے ہیں اور 360 ڈگری پر مشتمل ہوتے ہیں، جو مغرب اور مشرق کو علیحدہ کرتے ہیں۔ سورج جب زیرو ارض بلد پر ہوتا ہے، دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ 90 ارض بلد شمال اور 90 ارض بلد جنوب میں 1 ڈگری کے حساب سے سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے۔ جب سورج زیرو ارض بلد پر ہوتا ہے 21 مارچ اور 21 ستمبر کو، تو شمال اور جنوب میں، یعنی شمال 90 ارض بلد اور جنوب 90 ارض بلد میں 24 سے 36 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ اور اس دوران سورج جب زیرو ارض بلد پر ہوتا ہے
कम से कम 111 किलोमीटर तूल बलब पर सीधी रोशनी पहुंचती है ज़मीन पर। इसके आसपास तिरछी रोशनी पड़ना शुरू हो जाती है। हम 111 की बजाय 222 किलोमीटर कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ताकि कोई गुंजाइश शक व शुबे की कमी ना रहे। तो यूँ समझिए कि सूरज जब ज़ीरो अर्थ बलब पर होता है तो जो हिस्सा ज़मीन का सूरज के सामने होता है, सिर्फ 222 किलोमीटर पर सूरज की रोशनी सीधी पहुंचती है। इसके बाद 2 अर्थ बलब जनूब है, 2 अर्थ बलब शुमाल है। इसके साथ साथ जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं बहर की जानब, सूरज की रोशनी तिरछी पड़ना शुरू हो जाती है। इसके साथ सूरज जब ज़ीरो अर्थ बलब से जनूब 23 अर्थ बलब की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, 90 अर्थ बलब जनूब में 6 माह का दिन और 90 अर्थ बलब शुमाल में 6 माह की रात बनना शुरू हो जाती है। इसके बाद जब सूरज वापस ज़ीरो अर्थ बलब पर आ जाता है, ज़ीरो अर्थ बलब से 23 अर्थ बलब शुमाल की जानब बढ़ना शुरू कर देता है, तो शुमाली 90 अर्थ बलब पर 6 माह का दिन और जनूबी 90 अर्थ बलब पर 6 माह की रात बनना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये तो था ज़मीन का मॉडल, अर्थ बलब, तूल बलब और ज़मीन पर पहुंचने वाली सूरज की किरणों के ज़ाविये। अब आते हैं सूरज के मॉडल की तरफ। ये सूरज का मॉडल है। माहिरीन के मुताबिक सूरज का कुत्र 8,65,000 है। अब हमने सूरज के साइज का तयन करना है ज़मीन पर पहुंचने वाले रोशनियों के ज़ाविये और ज़मीन पर बनने वाले चीज़ों यानी खंबा, इंसान, दरख्त वगैरह के साए अक्स से। जब हम इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे कि किस जाविये से सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंचती है और साए कितने बनते हैं, फिर हम तयन कर सकेंगे कि सूरज का असल साइज़ क्या है। ये तो है मेरे फलकियात के मुताबिक सूरज का कुत्र 8,65,000 है। दोस्तों, अजीब बात है, ये सूर्य कुत्र 110 गुना बड़ा है ज़मीन से, और जो ये निशान है छोटा सा ज़मीन का। अब गौर करें, एक छोटी सी ज़मीन है, बहुत बड़ा सूरज है। जब ज़मीन का तूल बलब सूरज के सामने होता है, यानी सूरज किसी ज़मीन के हिस्से पर एन ऊपर 90 डिग्री पर होता है, तो उस वक्त सूरज पूरे ज़मीन को 90 अर्थ बलब शुमाल और 90 अर्थ बलब जनूब को अपनी सीधी किरणों से रोशन नहीं कर पाता। ये बड़ी हैरत की बात है। ये तो गुमान ख्याल में भी नहीं आ सकता कि इतना बड़ा सूरज एक छोटी सी ज़मीन को रोशन नहीं कर सकता। तो आइए हम अपने प्रैक्टिस से, अपने मशकों से साबित करते हैं कि सूरज का साइज़ क्या है। दोस्तों, एक मशक के मुताबिक जितना साइज़ सूरज का है, अगर उसी साइज़ की ज़मीन हो तो ज़मीन पर 90 अर्थ बलब जनूब और 90 अर्थ बलब शुमाल तक कहीं भी साया नहीं बनेगा जब सूरज किसी तूल बलब के ऊपर होगा। मिसाल के तौर पर ये एक राड है बल्ब का। अब कोई राड ले लें बल्ब का। इस बल्ब के जो राड है इसका कुत्र है 4 इंच। अब इसके नीचे कोई चीज़ ले लें, कोई बाल ले लें या कोई बुक ले लें, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जैसे मैंने जिन्हें से ज़ाहिर किया है। फिर उस पर 4 इंच के फासले से 2 कील
नस्ब कर दें और बल्ब को इन कीलों के ऊपर रखें कुछ फासले पर, तो आप देखेंगे कि इन कीलों का, दोनों कीलों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप और भी कील यहाँ रख सकते हैं। तो मैं आपको ये मिसाल से समझा रहा हूँ। तो इन 4 इंचों पर किसी भी जगह पर साया नहीं बनेगा, ठीक है। यही मिसाल सूरज की है। अगर सूरज अपने तमाम बॉडी से रोशनी खारिज कर रहा है तो ये एक ज़मीन को अपनी मूडी रोशनी से खराब नहीं कर रहा। इससे वाज़ेह होता है कि इसमें डूब है। अगर इसी मशक को अपनाया जाए, क्योंकि मैं तो इस मशक का पहल हूँ और आने वाले सर्दियों साल बाद इंसान जो तरक्की करेंगे वो इस फार्मूले पर अमल करेंगे। तो इस फार्मूले के मुताबिक सूरज ज़मीन से कम 57 गुना छोटा है। बड़ी हैरत की बात है, मेरे फल्कियात 110 गुना बड़ा बताते हैं और यहाँ प्रैक्टिस में, मशक़ों में 57 गुना छोटा साबित हो रहा है। तो आइए किसी ऐसे मशक़ की तरफ रुजू करते हैं जो हमें बताए कि बड़े से बड़ा सूरज कैसे बन सकता है। आइए दोस्तों, एक दूसरी मशक़ की तरफ। आइए एक ऐसे माध्यम की तरफ कोशिश करते हैं कि बड़ा साइज का सूरज बनाने में हम कामयाब हो जाएं। दोस्तों, यह है सूरज का क़ुव्वत 8,65,000। हमने इसको सूरज को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। 4,32,500 एक रेडियस जनूबी और 4,32,500 शुमाली रेडियस। फिर हमने सूरज की मुहित पर ये छोटी छोटी किरणें डाल दिए हैं ताकि इसकी मदद से वो ख़त खींचे जो सीधा ज़मीन की तरफ आ रही हैं। ये जो निशान लगाया हुआ है ये ज़मीन का है। तो सीधा ज़मीन की तरफ आए ये लकीरें, किरणें, इनकी मदद से हमने खैत खींचा है, एक शुमाली रेडियस से तो दूसरा जनूबी रेडियस से। फिर हमने इसकी पैमाइश की इस रेडियस से जो इस हिस्से का किलोमीटर बनते हैं। फिर इसको हमने गिनती की, वो 13 हिस्से बने। हर एक इसमें 33 हज़ार मील फासला है। ये 2 रेडियस हैं, 33 शुमाली और 33,000 जनूबी। टोटल जो सूरज की रोशनी आ रही है ज़मीन की वो है 6000 मील, जबकि ज़मीन का जो साइज़ है, कुतरा है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा 8000 मील। 29,000 ज़मीन के शुमाल में इजाफी रोशनी मौजूद है और 29,000 ज़मीन के जनूब में इजाफी रोशनी मौजूद है। यानी 8 ज़मीनें इस 6000 रोशनी के कुतरे पर रखी जाएँ तब भी किसी ज़मीन पर साया नहीं बनेगा जब तूल बलद सूरज के सामने होगा। मगर यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। सिर्फ 222 किलोमीटर ज़मीन के अमूदी रोशनी से सैराब हो रहे हैं। सूरज की अमूदी रोशनी 222 किलोमीटर के ज़ाविये से पहुँच रही है, बाकी आसपास तिरछियाँ है। तो इससे साबित होता है कि सूरज बहुत ही छोटा है। इस फार्मूले के मुताबिक सूरज कम से कम ज़मीन से 4 गुना छोटा है। मेरे फल्कियात के मुताबिक एक छोटा जिस्म बड़े जिस्म के गिर्द गर्दिश करता है, लिहाजा यहाँ साबित हुआ कि सूरज ज़मीन से कई गुना छोटा है। सूरज ही अब ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। ज़मीन अपने मदार में भी साकिन है और अपने महवर में भी साकिन है। दोस्तों, आपने कुरान मजीद में भी सुना, हदीस में भी सुना और मैंने बयान किया कि जैसे कहा गया कि सूरज को बेनूर करके समंदर में फेंक दिया जाएगा। तो ये तो रहा कुरान मजीद और हदीस मुबारक का प्रैक्टिकल सबूत, क्योंकि कुरान मजीद एक लारैब किताब है और हदीसों में भी कोई शक व शुबा नहीं। जब उन हदीसों के प्रैक्टिकल सबूत आ गए तो हम किसी भी
حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ دوستو، اگر کوئی شخص مجھے چیلنج کرنا چاہے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، وہ آئے بالکل میرے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے اور مجھے 110 گنا بڑا سورج ثابت کر دکھائے کہ وہ زمین سے 110 گنا بڑا ہے، پریکٹیکل ثبوت کے ساتھ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، آپ اسے سراہیں گے، لائک اور شیئر کریں گے۔ دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسری پریکٹیکل ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک خدا حافظ۔